we recall the sign convention when we divide integers. Okay, so when we divide a negative integer by a negative integer, we always get a positive integer. And when we divide a positive integer by a positive integer, we also get a positive integer. When we divide a negative integer by a positive integer, we get a negative integer. And when we divide a positive integer by a negative integer, we get negative integer. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 25 डिवाइडेड बाय 5. तो हम इसे लिखते कैसे हैं? 25 डिवाइड दैट मीन्स अपॉन 5, जो बाद में लिखा होगा, डिवाइड के बाद जो नंबर आएगा वो हम इसे अपॉन के नीचे में लिख, अपॉन 5, दैट इज 5. स्टूडेंट, टुडे वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन इज इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. ओके, सो हमें इन्हें सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट, -30 डिवाइडेड बाय 10. सो हियर -30 डिवाइड, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड मीन्स अपॉन 10. ओके, सो नाउ जब हम माइनस एंड प्लस इंटीजर होता है डिवाइड में, माइनस एंड प्लस इंटीजर, तो साइन क्या मिलता है हमें? माइनस. मल्टीप्लीकेशन के भी रूल और डिवाइड के रूल सेम है. ओके, सो हियर माइनस, 0 से 0 कैंसिल, देन वी गेट -3. नाउ नेक्स्ट 50 डिवाइडेड बाय -5, दैट मीन्स 50 अपॉन -5. व्हेन पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर, वी गेट सेम यही पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स हमें नेगेटिव साइन मिलेगा. एंड 50 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 10. Now, -36 upon -9. When we divide negative integer by negative integer, we get a positive integer. And when we divide 36 by 9, we get +4. Now, -49 divided by 49. At first sign, when negative integer divided by positive integer, we get negative integer. And 49 divided by 49, 1. Okay. Now 13 divided by whole upon है. Okay. So पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. -2 plus 1. That is 13 upon -2 plus 1, that is -1. And when we divide positive integer by negative integer, we get negative integer. And 13 upon 1, that is 13. Now 0 upon -12. And you know that when 0 divided by any number, we get 0. There is no sign. Okay, just a 0. Again, now next part, -31 divided by, ब्रैकेट में क्या है? ये पूरा ब्रैकेट साथ में, that means whole upon. Okay, -30 plus minus, that is minus and 1. So -31 upon -30 minus 1, that is -31. And minus integer and minus integer, तो साइन क्या मिलेगा? प्लस. And 31 divided by 31, we get 1. Next part, -36 upon, ये upon 12. Okay, पहले हमें ये सॉल्व करना है. -36 divided by 12, पहले हम ये सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट साथ में इसमें लगा है. Then divided by 3. So -36 upon 12, that is -3. And अब ये तो इसका आंसर है. Now divided by 3, that is upon 3. -3 divided by 3, that is -1. Now -6 plus 5. -6 plus 5 ये साथ में है. Now whole upon -2 plus 1 equals to -6 plus 5, that is -1 upon -2 plus 1, that is -1. And minus and divided by minus sign. So we get a positive sign, and 1 divided by 1, that is 1. Now second question, verify that a divided by
in bracket b plus c does not equals to a divided by b plus a divided by c. ऐसा ही कुछ आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी फॉर मल्टीप्लीकेशन. व्हाट इज दैट? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इक्वल्स टू a इंटू b प्लस a इंटू c. पढ़ी थी ना. अब हमें प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है कि इन केस ऑफ डिवाइड इट इज नॉट ट्रू. ओके, साइन वही है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, और यहां क्या थे साइन मल्टीप्लाई. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे डिवाइड के केस में अप्लाई नहीं होती है. सो यही प्रूफ हमें करना है. सो स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट वेर a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -4 and c equals to 2. So at first we take the left hand side, put the values in left side. That is a divided by b plus c. Now a, what is the value of a? 12 divided by b -4 and c plus 2. Now 12 divided by -4 plus 2, that is -2, equals to 12 divide का साइन अपॉन -2 equals to 12 divided by -2, that is sign negative minus sign, and 12 divided by 2 we get 6. Now put the values in right hand side, that is a divided by b plus a divided by c. Now, so put the values. A 12 divided by b. What is the value of b? -4 plus a divided by c, that is 12 divided by, हम दो साइन साथ में नहीं लिखते हैं तो मैंने इसको क्या किया, इन ब्रैकेट. ओके, 12 divided by c, that is 2. Now at first solve this. 12 divided by -4. 12 divided by -4 plus 12 divided by 2. Now 12 upon -4, that is sign minus, and 12 upon 4 we get 3, plus 12 upon 2, that is 6. So -3 plus 6, that is plus 3. And here left hand side is not equals to right hand side. ये हमने प्रूव कर दिया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई थी, -6 डज नॉट इक्वल्स टू +3. सो ये वेरीफाई हो गया दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c डज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c. नाउ सेकेंड पार्ट, a इक्वल्स टू -10, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1. सो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे. ओके, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल्स टू 369. अब यहां पर हम अब एक नई चीज समझेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट 369 डिवाइडेड बाय, हमें ये वैल्यू पता नहीं है तो अज्यूम कर रहे हैं लेट x इक्वल्स टू 369. अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूं 369 डिवाइड, दैट मीन्स अपॉन. ओके, अपॉन में x इक्वल्स टू 369. इसके अपॉन में कुछ है नहीं है, डिवाइड कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, अपॉन 1, 369. सो जब हमें ऐसे दिखेगा लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यूज दी होंगी अपॉन में और राइट साइड में, तो यहां पे एक रूल अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इसमें क्या होता है, देखो एरो बनाए हैं तो हम क्या करेंगे, क्रॉस किन किन के बीच में बनाए, ये लाइन, दैट मीन्स 1 और 369 मल्टीप्लाई होंगे एंड x और 369 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. बीच में क्या साइन है, इक्वल का, तो इक्वल ऐसे ही रहेगा. ओके, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलती है, इक्वल मिलती है, दैट इज 369 इंटू 1 इक्वल्स टू x इंटू 369. हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट मीन कुछ नंबर्स हैं फ्रैक्शन में, a अपॉन b
इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ऐसे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल ये क्रॉस किया तो वैल्यू क्या होंगी, ए इंटू डी, क्रॉस का साइन बना है दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू डी दैट मीन्स ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। ये रूल आप ये मेथड आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। ओके, सो यही चीज मैंने यहां पे भी अप्लाई की है। ओके, 369 इंटू 1। अब हमें जिसकी वैल्यू बतानी है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की। अब हम लेफ्ट साइड को राइट साइड और राइट को लेफ्ट लिख सकते हैं। ओके, सो मैं पहले क्या लिख रही हूं, एक्स इंटू 369 इक्वल्स टू 369 इंटू 1, यही चीज लिखी है, बस साइड चेंज की है। ओके, सो एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू बतानी है। अब जैसे हम प्लस और माइनस में करते थे, और जब हमारा साइन क्या होता था, इक्वल का, प्लस साइन जब हम इस साइड शिफ्ट करते थे तो वो किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। एंड माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस साइन, जब हम क्या करते हैं, उनकी साइड चेंज करते हैं। ऐसा ही कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी होता है। मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड में एंड डिवाइड होगा मल्टीप्लाई में। सो डिवाइड यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई 369, तो जब ये नीचे जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड। सो 369 इंटू 1 अपॉन 369, ये 369 मैंने यहां लिखा है। ठीक है, सो एक्स इक्वल्स टू 369 अपॉन 369, ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज आपको क्या मिला, 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो हियर जो यहां फिल करना है हमें, वो ब्लैंक में क्या आया, 369 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 369। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज -75 डिवाइडेड बाई, यहां पे कुछ वैल्यू हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू -1, तो हम इसे क्या एज्यूम करेंगे, x, दैट इज -75 डिवाइड दैट मीन्स अपॉन x, हमने इसे क्या लिया है, x, इक्वल्स टू -1 अपॉन, हम क्या लिख सकते हैं इसके नीचे, 1, क्योंकि हम 1 से कभी भी किसी नंबर को भी डिवाइड करते हैं हमें एज इट इज सेम नंबर मिलता है। ओके, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो x, हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, x वाला टर्म। ओके, x इंटू -1 इक्वल्स टू 1 इंटू -75। नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इक्वल्स टू 1 इंटू -75 दैट इज -75 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, -1, यहां जाके वो किस में चेंज होगा, डिवाइड में। सो -1 कहां जाएगा, अपॉन में, -1। सो x इक्वल्स टू माइनस साइन, जब माइनस साइन से डिवाइड होता है, दैट इज व्हेन नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड 75 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट 75। सो हियर द वैल्यू ऑफ x दैट इज इन ब्लैंक, वी पुट द वैल्यू 75, और यहां से इसको ऐसे भी समझ सकते हो, -75 डिवाइड दैट मीन्स 75 अपॉन 75 इक्वल्स टू माइनस एंड प्लस, क्या साइन मिलेगा आपको, माइनस, एंड 75 डिवाइडेड बाई 75 दैट इज 1। यहां से हमने इसे प्रूव भी कर लिया।